کی جانب سے مالی سال 2022 سے 23 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت آج 4 بجے ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت آئندہ مالی سال 2022 سے 23 کا ایجنڈا اجلاس میں پیش کرے گی اور قومی حکومت نے قومی اسمبلی کی بجٹ اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے کر لی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری بھی تعینات کی جائے گی اور غیر متعلقہ افراد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ نئے مالی سال کے لیے 9,000 ارب روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ مختص کیا جائے گا۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال 2022 سے 23 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت آج 4 بجے ہوگا اور حکومت آئندہ مالی سال 2022 سے 23 کا ایجنڈا اجلاس میں پیش کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ قومی حکومت نے قومی اسمبلی کی بجٹ اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے کر لی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے اور اجلاس کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی جائے گی۔ غیر متعلقہ افراد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی عائد ہوگی۔ نئے مالی سال کے لیے 9,000 ارب روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال 2022 سے 23 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا اور قومی اسمبلی کا اہم اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت آج 4 بجے ہوگا۔ حکومت آئندہ مالی سال 2022 سے 23 کا ایجنڈا اجلاس میں پیش کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ قومی حکومت نے قومی اسمبلی کی بجٹ اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے بھی کر لی ہے اور وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری بھی تعینات کر دی جائے گی، جبکہ غیر متعلقہ افراد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ نئے مالی سال کے لیے 9,000 ارب روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال 2022 سے 23 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا اور قومی اسمبلی کا اہم اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت آج 4 بجے ہوگا۔ حکومت آئندہ مالی سال 2022 سے 23 کا ایجنڈا اجلاس میں پیش کرے گی اور قومی حکومت نے قومی اسمبلی کی بجٹ اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے بھی کر لی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی جائے گی۔ غیر متعلقہ افراد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی عائد ہوگی اور نئے مالی سال کے لیے 9,000 ارب روپے سے زائد کا حجم کا وفاقی بجٹ مختص کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال 2022 سے 23 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت آج 4 بجے ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی سے۔ جی شاکر عباسی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ حکومت آئندہ مالی سال کا جو ایجنڈا ہے وہ پیش کرے گی۔ قومی حکومت نے اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے کر لی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس جو ہے اسپیکر کی زیر صدارت 4 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پولیس اور رینجرز کی اضافی نفری تعینات ہوگی۔ غیر متعلقہ افراد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ آئی ایم ایف کی کڑی نگرانی میں بننے والا وفاقی بجٹ 2022-23 جو ہے وہ آج مفتاح اسماعیل پیش کریں گے۔ وفاقی بجٹ میں 4,000 ارب روپے سے زائد کے خسارے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے وفاقی کابینہ بجٹ کی منظوری دے گی۔ اس وقت وفاقی کابینہ خصوصی اجلاس بھی جاری ہے۔ اقتصادی ٹیم بجٹ خسارہ 3700 ارب روپے رکھنے کی خواہشمند ہے۔ آئی ایم ایف کا 4,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ خسارہ رکھنے کے لیے دباؤ بھی ہے۔ وفاقی بجٹ کا حجم 9500 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ وفاق اور صوبوں کا مجموعی میزانیہ 12,992 ارب روپے تجویز ہے۔ بجٹ میں 525 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات جو ہیں وہ تجویز ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی گاڑیوں اور کریڈٹ کارڈ ہولڈرز پر ٹیکسوں کی شرح میں اضافے کی تجویز ہے۔ نان فائنل کے لیے بھی ٹیکس شرح بڑھانے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں اشیاء کی درآمد پر ٹیکس اور ڈیوٹی چھوٹ ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ آئی ٹی ٹیلی کام سیکٹر کے لیے پرکشش مداخلت کا اعلان بھی متوقع ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی زون میں سرمایہ کاری پر 5 سے 10 سال کی ٹیکس چھوٹ کی بھی تجویز ہے۔ دفاعی اخراجات کے لیے
1586 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ है। कौमी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2184 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी मनसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 1384 अरब रुपए होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए 433 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मवासलात के मनसूबों के लिए 227 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। समाजी शोबे के लिए 144 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तवानाई के शोबे के लिए 84 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि पानी के मनसूबों के लिए 83 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। महंगाई का हदफ 11.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। IMF के दबाव पर बिजली और गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी में कमी की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF प्रोग्राम बहाल न होने की वजह से बजट साजी में मुश्किलात का सामना रहा। IMF के साथ बजट साजी पर मुशावरत की गई है। IMF का बजट में 750 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए भी दबाव है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक FBR को अगले साल की बजट में 1125 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करना होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफे भी मुतवक्किल है। इसके अलावा ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रज़ामंद कर लिया गया है। इससे कबल IMF को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर एतराज़ात थे। जी शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2022 से 23 का बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज मुतवक्किल है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत आज इजलास 4 बजे होगा और हुकूमत आइंदा माली साल 2022 से 23 का एजेंडा इजलास में पेश करेगी। आपको अपडेट करें हैं कि वफाकी हुकूमत नए माली साल 2022 से 23 के लिए वफाकी बजट आज जुम्मे को 4 बजे कौमी असम्बली में पेश करेगी, जिसमें दरपेश मुल्की और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के तनाजुर में माली वर्जी इस्तेहकाम, खसारे में कमी, बरामदात में इजाफा और दरामदात के मुतबादिल मकामी मसनूआत की तैयारी, कारोबारी सरमायाकारी में आसानी और ज़राअत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करवाएगी। आपको अपडेट करें हैं कि ज़राए के मुताबिक नए माली साल के PhD में बलूचिस्तान और नौजवानों के लिए कई स्कीमें भी शुरू की जा रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के मंसूबों के अलावा वज़ीर-ए-आज़म मेरिट बेस्ड लैपटॉप भी फराहम करेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2022 से 23 का बजट आज कौमी असम्बली में 4 बजे पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज मुतवक्किल है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत आज 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास मुतवक्किल है और हुकूमत आइंदा माली साल 2022 से 23 का एजेंडा इजलास में पेश करेगी। आपको अपडेट करें हैं कि कौमी हुकूमत ने कौमी असम्बली के बजट इजलास से मुतल्लिक़ हिकमत अमली भी तय कर ली है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल आइंदा माली साल का बजट आज पेश करेंगे। आपको बताएं कि इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात कर दिए गए हैं और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात कर दी जाएगी। गैर मुतल्लिका अफराद की पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। नई माली साल के लिए 9000 अरब रुपए से ज़ायद हजम का वफाकी बजट मुख्तस कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 2022 से 23 का बजट आज पेश किया जाएगा और कौमी असम्बली का इजलास आज 4 बजे मुतवक्किल है। नए बजट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन की रोशनी में तरक्की की बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि पानी के वसाइल को तरक्की देने को PhD में भी तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा आला तालीम का शोबा भी PhD पर तरजीह का हिस्सा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज वफाकी बजट में वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल का बजट 2022 से 23 पेश किया जाएगा और कौमी असम्बली का अहम इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत आज मुतवक्किल है। राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत आज 4 बजे इजलास होगा और हुकूमत आइंदा माली साल 2022 से 23 का बजट आज पेश करेगी। कौमी हुकूमत ने कौमी असम्बली के बजट इजलास से मुतल्लिक़ हिकमत अमली भी तय कर ली है। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। आपको अपडेट करें कि 9500 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है आज के माली बजट में और इजलास के दौरान पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी किए जाएंगे। हुकूमत ने बजट तजावीज़ की हतमी शक्ल दे दी है और तजावीज़ पर IMF मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। ताहम कबाइल टैक्स आमदन की हद तय करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक भी आज इजलास में ये डिसाइड होगा। आपको बताएं कि बजट में कर्ज और कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 21 अरब डॉलर मुख्तस किए जा रहे हैं, जबकि बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए 3500 अरब और मकामी कर्ज की अदायगी के लिए 700 अरब रुपए रखे जाएंगे। हुकूमत अगले माली साल के दौरान मुख्तलिफ ज़राए से
4600 अरब कर्ज लेगी, जबकि सब्सिडी की मद में 650 अरब रुपए रखे जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार। जी मुर्तज़ा डार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज कौमी असम्बली का इजलास है और जो है बजट आज का 2022 से 23 का पेश किया जाएगा, तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यकीनी तौर पे जी बड़ी अहमियत का हामिल है और इस बजट के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें लगी हैं। इस हुकूमत की भी लगी हैं, ऑपोजिशन की भी लगी हैं, IMF की भी लगी हैं, लोगों की भी लगी हैं। तो जितने भी कंसर्न्ड क्वार्टर्स हैं वो तमाम की तमाम इस वक्त फोकस्ड हैं कि ये हुकूमत हमारे साथ क्या करने जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि वो क्या मुमकिन तौर पर कर सकती है। मुमकिन तौर पर वो लोगों से जो कि ऑलरेडी मिडिल क्लास हैं उनसे मजीद जो है वो उनके स्क्रू टाइट करेगी, उनसे मजीद जो है खून पसीना नचोड़ेगी, क्योंकि ये खून पसीना उनसे मजीद नचोड़ना IMF की शर्त है। IMF हमें पैसे देता है जिससे हम अपना मुल्क चलाते हैं। जब IMF पैसे देता है तो फिर उसके जो बाकी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, UAE, ये वो ममालिक हैं जो फिर हमें कहते हैं कि हाँ अब हम दे सकते हैं पैसे, क्योंकि आपने IMF की शराइत पूरी कर दी। ये उनका SOP है। तो हम इस उम्मीद पे कि हम अपने लोगों को मजीद जो है वो स्क्रू टाइट करेंगे तो फिर हमें IMF पैसे देगा और उससे फिर हम अपना मुल्क चलाएंगे। इस सास के ऊपर अपने मामला चला रहे हैं। यानी इन अदर वर्ड्स ये है कि उधार के पैसे पे हमारा घर चल रहा है। तो जिस उधार के पैसे पे हमारा घर चल रहा है उसमें हमारे घर वालों को पहले कहा जा रहा है कि जी आप मजीद विजिलेंट हो, मजीद सख्त हो, मजीद परेशानियां बर्दाश्त करें आप। तो हम उनको मजीद परेशानियां बर्दाश्त करवा के उनका घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो है हमारा मौजूदा मोटा मोटा इक्तिसादी मामला। अब सवाल ये है कि ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं, कल भी मैंने पढ़ी हैं कि जी IMF जो है जराये के मुताबिक वो अभी राजी नहीं है और वो बहुत सारे सवालात उठा रहा है, जिनमें मिसाल के तौर पे एक रिपोर्ट में कल ये पढ़ रहा था, शहबाज राना साहब की रिपोर्ट थी कि वो ये कह रहे हैं कि जो आपने मुआहदे चाइना के साथ किए हुए हैं IPPs वाले, उनको भी रिव्यू करें। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे फी यूनिट के पीछे आप 10 रुपए दे रहे हैं चाइना को, तो वो 10 रुपए ज्यादा है, उसको बंद करें, उसको कुछ 4-5 रुपए देने शुरू करें। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करें या आप उसको रिवाइज करें। यानी इन अदर वर्ड्स आपका जो चाइना के साथ रिलेशन है और CPEC प्रोजेक्ट जिसका ये जैली हिस्सा है, ये जो IPPs वाला चल रहा है, उसको आप डिस्टर्ब करें। अच्छा, हम कहते हैं चलो इसको छोड़ दो, हो सकता है कि इसमें रियलिटी ना हो सकता है कि ये सही ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आपने जो टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेवेन्यू था उसका हमें प्रॉमिस किया था कि वो आप ज्यादा करेंगे, वो भी दें आप। तो हम कहते हैं कि यार टैक्स नेट का हमारा सियासी मसला आ जाता है कि हम अगर अपने सियासतदानों से, अपने बड़े बड़े वडेरों से टैक्स लेंगे तो हम वो तो सारे ऐवान के अंदर बैठे हैं, तो हमारी तो पार्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी। चुनाचे ऐसा करते हैं कि जो आम शहरी है, जो सैलरी ले रहा है, जिसकी तादाद ज्यादा है, हम उसी को मजीद नचोड़ते हैं और उसको नचोड़ने में जो है हम कोशिश करेंगे कि कोई भी जो है वो लूप होल ना रहे। अच्छा, जब उसको नचोड़ते हैं तो फिर सियासत को और तरह डेंट पड़ता है, लेकिन हल भी कोई और नहीं है, तो चुनाचे प्रेशर सारा उसके ऊपर डालेंगे। तीसरा IMF कहता है कि भाई आपने सब्सिडी दी है, यानी कि आपने रियायती नरखों के ऊपर अपने लोगों को चीजें देनी शुरू की हुई हैं, तो वो भी आप बंद करें, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो वो सब्सिडी हो, वो चाइना का जो IPP वाला प्रोजेक्ट चल रहा है वो हो, या वो जो बजट आ रहा है उसके अंदर शराइत हो, या इससे जुड़ी और बहुत सारी चीजें हो। इन अदर वर्ड्स आपका मुल्क फिलहाल गिरवी है। जैसा दुकान लेते हैं ना गिरवी पे, तो आपका मुल्क इस वक्त IMF के आगे गिरवी है। और मजे की बात है कि इसके अलावा कोई और नहीं है जो हमें पैसे दे सके। उनका दुनिया में निजाम ऐसा है, नेटवर्क ऐसा है, उनकी हेजमनी ऐसी है, उनकी ताकत ऐसी है कि वो किसी और को हिलने नहीं देते अपनी मर्जी मंशा के अलावा। ये वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो लीडर है दैट इज अमेरिका। So whatever is happening because of American influence and relations with America। और हम उनके आगे जितना मर्जी गिड़गिड़ा लें, मैं भी कई साल अमेरिका रहा हूँ और अमेरिकन सिस्टम को और पॉलिटिक्स को जानता हूँ और उनके एकेडमिक्स को लेकर और उनके जितने स्टेट डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, काफी के साथ मेरा जाती तौर पे भी इंटरेक्शन रहा है और आज भी है। तो ये वो लोग हैं या ये वो सोच है जो जितना दबता है उसको उतना दबाते हैं, एक चीज, और जो जितना डरता है उसको उतना डराते हैं, दो चीजें। और तीसरी चीज ये कि जब ये पहले दो काम कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर वो हर उस चीज को थोपने की कोशिश करते हैं जो वो कई सालों से होल्ड किए हुए होते हैं। और ये इन्होंने तरीकाकार अडॉप्ट किया 1950 में, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ईरान में, वो कामयाब हुआ और उसी को अब वो दुनिया के हर मुल्क के अंदर इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। माई पॉइंट ऑफ
डिस्कशन इज कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं हो सकता, कैंसर का इलाज कीमो है। इस मुल्क को आज एक इकोनॉमिक कीमो की जरूरत है, वो कोई लगाएगा तो इसका मर्ज मुमकिन तौर पर हल हो पाएगा। अगर वो इसको डिस्प्रिन देता जाएगा, कभी 2 दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी नहीं देगा, तो फिर वो वक्ती तौर पे शायद जिस तरह एक कैंसर पेशेंट को थोड़ा सा तकलीफ में आराम आ जाता है, वो हो सकता है थोड़ी देर फॉर फ्यू मिनट्स आराम आ जाए, लेकिन द प्रॉब्लम या जो बीमारी है दैट इज स्टिल देयर, सो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड एंड नो वन ऑनेस्टली इज इंटरेस्टेड इन फिक्सिंग दैट। जो कोई भी इसको फिक्स करने के नाम पे इस वक्त सियासत कर रहा है या करवा रहा है, वो यकीनी तौर पे इस वक्त 2 की जगह 3 डिस्प्रिन करने की बात कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं रहा। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी मेरी इस किस्म की बहसें भी जारी रहेंगी, और तब तक जो है वो हम इस किस्म के झंडे जो है वो गाड़ते रहेंगे अपनी सहाफत के अंदर कि जी इसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया और मैं ये खबर ले आया और मैं वो खबर ले आया। इस तरह मामला चलते नहीं है। हमारा बीइंग जर्नलिस्ट काम ये है कि हम ऑनेस्ट पिक्चर जो है वो लोगों के आगे रखें, डिपेक्ट करें। मुझे बड़ा खतरा है, मुझे बड़ा खौफ है कि ये जो बजट आज आने वाला है अब से थोड़ी देर के बाद, ये अवामी बजट बिल्कुल भी नहीं होगा, और इस बजट के अंदर नए टैक्सेस भी लगाए जा सकते हैं। ऑलरेडी जो प्रिवेलेंट टैक्सेस हैं उनकी शरह भी बढ़ाई जा सकती है, और इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं जिसमें पेट्रोल है, जिसमें गैस है, जिसमें बिजली है, इसके नरखों में इजाफा करना तो है ही जरूरी। सो अवाम तैयार रहे, और तैयार वो 1 हफ्ते या 1 महीने के बाद की सूरत हाल के लिए ना रहे, वो तैयार रहे अब से कोई 3 से 4 महीने बाद की सूरत हाल। यानी मैं इमेजिन कर रहा हूँ या मैं फोर्स सी जो सिचुएशन इस वक्त कर रहा हूँ, जो इस वक्त अक्टूबर नवंबर के करीब चल रही होगी, आप यकीन कीजिए कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने इतना अरसा रिपोर्ट किया, चीज़ों को देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस सिचुएशन को सोचता हूँ कि यार अक्टूबर नवंबर में महंगाई के हालात क्या होंगे। आप बिलीव करें कि यहाँ पे लोग खुदकुशियां करते हैं, अपने बच्चों को पानी में माएँ छलांगे मार देती हैं, डबो देती हैं अपने बच्चों को, बाप अपने आप को कत्ल कर लेते हैं। यानी कि लोग इस वक्त या जो अपने बच्चे को कत्ल कर दे, अपने बच्चे को मार दे, अपनी जान ले ले, आप मुझे बताएं उस बेचारे का क्या हाल होगा। उस सितम जरीफी इसको जमाने की कहेंगे, और इसको क्या कह सकते हैं मुझे बताएं। और हमारे जो ये लीडरान जो कई सालों से बैठे हैं, कई दहाइयों से बैठे हैं, इनके पास कोई हल ही नहीं है। यार आप इमेजिन करें, ये दोनों पार्टियां नून लीग और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30-35 साल से इन्होंने हुकूमत की है, 3-3.5 दहाइयों से इन्होंने हुकूमत की है, और ये उठते हैं और कहते हैं जी हमारे पास हल है हर मसले का। यार आप मंजन उठते हैं, आप भेज देते हैं, और फिर आप घर चले जाते हैं और आप कहते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इसने चलने दिया, उसने चलने दिया। इसलिए आपके पास हर दफा रीजन, और आपके अपने अकाउंट्स के अंदर अरबों डॉलर हैं, आपके अपने बेटे जो है वो लंदन के फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, आपके अपने बेटे जो है वो इम्पोर्टेड बच्चे हैं आपके, ठीक है, वो घूमते फिरते हैं, यहाँ की सियासत भी करते हैं, और वो एक सीएम बन के बैठ गया, एक फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठ गया, अब आगे उनके जो बच्चे हैं वो उम्मीदवार निकल आएंगे। आई मीन ये तमाशा लगा हुआ यार। और मैं आप सच पूछे, मैं किसी से किसी दिन एक दिन बैठा डिबेट कर रहा था निजी महफिल के अंदर, और मैं उनको ये कह रहा था कि यार कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, उन्हें ये करने। मुर्तज़ा डार, इस हवाले से मजीद अभी हम आपसे बात करेंगे बजट के हवाले से। हम इस वक्त नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलते हैं।